Hello students, today we are going to discuss about the chapter Relation and Function. Myself Rahul Singh, this is my first lecture of the Relation and Function. So we are going to discuss about the relation and function. First of all, what is the Cartesian product? पहले हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा कि क्लास 11 के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा. दिस इज वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर द एनडीए एंड आईआईटी जेई. फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the Cartesian product. This is the Cartesian product. Okay. Cartesian product. Let A and B two non-empty set. Suppose that A and B two non-empty set. Let A and B. आप जानते हैं A और B ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब जो एकदम से खाली ना हो, जो एम्प्टी ना हो, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए. कंटेन्स वन एलिमेंट आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स. तो A और B टू नॉन एम्प्टी सेट्स. एम्प्टी सेट्स. Okay. Suppose A equal to element that is the 1, 2, 3. There are 3 elements in a set A and set B is equal to 4, 5, 6. Okay. In a set A that is the element 1, 2, 3 and set B that is equal to 4, 5, 6. So the Cartesian product of A and B of A और B का Cartesian product हम कैसे लेते हैं? तो then we write the Cartesian product A and B that is equal to, this is the ordered pair 1, 4. Okay. Then 1, 5 ordered pair 1, 6 and 2, 4, 2, 5 and 2, 6. Okay. Next 3, 4, 3, 5 and 3, 6. 3, 4, 3, 5 and 3, 6. This is the Cartesian product of A and B. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ जिसमें फर्स्ट एलिमेंट एवरी ऑर्डर्ड पेयर हियर every ordered pair first element belongs to set A and the second element belongs to set B. This is the pre-image of the first, in which ordered pair the first element belongs to set A and the second element belongs to set B. So then we can say that the first element is the pre-image of the second and second is the image of the first. Okay, is it right? So this is the Cartesian product of A and B. So first is the pre-image and second is the image of first. First is the pre-image of the second and second is the image of the first. Okay, this is the Cartesian product. Cartesian product हम क्यों बता रहे हैं? Cartesian product को हम इसलिए बता रहे हैं रिलेशन को समझने के लिए हमें Cartesian product की जरूरत पड़ती है. क्योंकि रिलेशन ये रिलेट है किससे? Cartesian product से. अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए सॉरी रिलेशन के बारे में बताते हैं. रिलेशन क्या होता है देखिए. अब रिलेशन क्या करता है? दिस इज द रिलेशन सपोज रिलेशन फ्रॉम A to B, from A to B we can write that is A R B. Relation from A to B that is the A R B. अब relation from A to B कौन सा? तो relation from A to B is a subset of this Cartesian product. The relation from A to B we can write the relation from A to B
is a subset of Cartesian product of A and B. Cartesian product of A and B, which taken out in some manner, which taken out in some manner, which taken out in some manner. Okay. This is the relation from A to B. So relation from A to B is a subset of A and B, which taken out in some manner, जिसको हम कुछ manner के which taken out करते हैं. तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन हुआ ए और बी का रिलेशन ये डिफाइन करता है कि ये ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट यू नो दैट द पार्ट ऑफ दिस सेट, इस सेट का पार्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? पार्ट है, जिसको कुछ मैनर के थ्रू, मैनर क्या होना चाहिए? कुछ रिलेशन फॉर्म कैसे करेगा? कुछ मैनर के थ्रू टेकन आउट करते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम ऊपर का अरेंज कर देते हैं, आपको एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द रिलेशन आर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन लेते हैं आर इक्वल टू ए बी, एक ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, ये सच दैट का साइन, सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर्स. ए और बी क्या है? इवन नंबर्स. फॉर ऑल, जितने भी ए हैं, ये फॉर ऑल का साइन है. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी. मीन्स इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है सेट बी से बिलोंग करेगा. और कंडीशन क्या कहते हैं? ये रिलेशन ये बताता है कि ए और बी कैसे होने चाहिए? इवन नंबर होने चाहिए. कैसे नंबर होने चाहिए? इवन नंबर. हम इस इसको लिखते हैं ऐसे, दिस इज द रिलेशन आर इक्वल टू. अब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी. अब देखिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखिए, इसमें ए और बी, ए मींस दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट व्हिच बिलोंग टू सेट ए, जो पहले सेट से बिलोंग करता है. सेकंड इज द बिलोंग्स टू सेट बी. ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों कैसे होने चाहिए? इवन नंबर्स होने चाहिए. रिलेशन ये बताता है दोनों इवन नंबर होने चाहिए. बट आपने डेफिनेशन क्या समझी? रिलेशन ये सबसेट ऑफ ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. जिसका रिलेशन आप फॉर्म करते हो, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालते हो, तो जिसका रिलेशन आप फॉर्म कर रहे हो वो सबसेट किसका होना चाहिए? उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ए और बी का रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन होना चाहिए. ओके, ए और ए का अगर हम रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन ए का ए से, तो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट माने ए क्रॉस ए हो गया. ठीक है, ए और सी का निकाल रहे हैं, ए और सी का रिलेशन ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए. तो ऐसे ही ए और बी, ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर. सब इसमें इवन नंबर देखिए, दोनों इवन नंबर हो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट में. देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का हो गया. इसमें 1 4 ये दोनों इवन नहीं है, 1 5 ये इवन नहीं है, 1 6 ये दोनों इवन नहीं है, 2 4 ये इवन है. तो रिलेशन क्या हो गया? यहाँ पे 2 4 दोनों इवन. फिर देखिए 2 5, 2 क्या है? इवन है. 5 क्या है? ऑड. 2 6 भी हो गया. ठीक है, अब देखिए 3 4 ये क्या है? एक ऑड है, एक इवन. 3 5 फर्स्ट ऑड है, दूसरा इवन. 3 6 फर्स्ट ऑड है, दूसरा इवन. तो ये क्या हो गया? दैट इज द रिलेशन फॉर्म. क्या हो गया? रिलेशन. अब देखो ये जो रिलेशन फॉर्म हुआ है, ये इसका सबसेट हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हुआ. ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट माने पार्ट ऑफ द सेट हो गया, या इसका सबसेट हुआ जिसको कुछ मैनर के थ्रू, विच टेकन आउट इन सम मैनर लिखा हो, जिसको कुछ मैनर के थ्रू टेकन आउट करते. तो मैनर क्या हुआ कि एक ऐसा रिलेशन फॉर्म करो जिसका ऑर्डर्ड पेयर माने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर थे वो इवन नंबर होने चाहिए. कैसे नंबर होने चाहिए? इवन नंबर. अब इसी एग्जांपल को इस तरह ले कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें सपोज दैट एक रिलेशन आर इक्वल टू बी, एक रिलेशन और फॉर्म करें. दैट इज द रिलेशन सेकंड. जैसे सपोज दैट सेकंड रिलेशन आर इक्वल टू, हम एक रिलेशन फॉर्म करते ए बी
such that A and B both are odd numbers. कैसे नंबर्स होने चाहिए? odd numbers होने चाहिए. Both are odd numbers. Such that for all A, जितनी भी A हैं बिलोंग करेंगे सेट A से, और B जो है सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट B से बिलोंग. अब इसको हमें फॉर्म करना करें. ये कंडीशन क्या हो रही है? ये रिलेशन ये बताता है कि दोनों ऑड नंबर्स होने चाहिए. पहला एलिमेंट्स बिलोंग करना चाहिए सेट A से, दूसरा सेट B से. अब ये सबसेट किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. अब देखिए इसमें दोनों क्या होने चाहिए? ऑड नंबर होने चाहिए. अब देखो ऑड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे दोनों ऑड है. ठीक, यहाँ पर देखिए ये ऑड है. ठीक है, यहाँ पर एक ऑड है, एक इवन है, यहाँ ऑड इवन है, यहाँ दोनों इवन है, यहाँ एक ऑड इवन और एक ऑड है. तो ये इसका रिलेशन क्या हो गया बेटा? इसका रिलेशन ये हो गया. अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं. इसका रिलेशन हो गया दैट इज द क्या क्या था? अब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में R इक्वल टू ये रिलेशन था. जैसे यहाँ पर 1 2 3 था, सपोज दैट. इसको हम नीचे वाले इरेज करते हैं. ये A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले लिख देते हैं. A क्रॉस B इक्वल टू था 1 4 1 5 1 6 एंड 2 4 2 5 2 6 के कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था. 3 एलिमेंट्स थे एंड 3 4 3 5 एंड 3 6. ओके, तो अब दोनों ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर कौन कौन सा आपको बेटा? 1 5 पहला हो गया, दूसरा हो गया 3 5. ओके, तो ये रिलेशन फॉर्म हो गया. तो रिलेशन ये हुआ. रिलेशन का मतलब रिलेशन किसी भी दो सेट्स का जो रिलेशन फॉर्म करते हैं, हम क्या करते हैं? वो सबसेट होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको कुछ मैनर के थ्रू टेकन आउट करते हैं. और हम यहाँ पर जो रिलेशन फॉर्म करते हैं, इसका जो इस रिलेशन ये ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट वो दैट इज द ये इंडिकेट करते हैं कि डोमेन ऑफ द रिलेशन, माने इस रिलेशन को क्या कहता है? डोमेन होता है. और सेकंड एलिमेंट इज द रेंज. सेकंड एलिमेंट क्या होता है? डोमेन ऑफ द दिस रिलेशन. आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन दैट इज द 2. यहाँ पर डोमेन क्या हो गया? 2 हो गया. और रेंज क्या हो गया? 4 6 हो गया. क्लियर? और जो होल जो पूरा एलिमेंट्स होता है सेट बी का पूरा एलिमेंट्स होता है, जो सेकंड सेट होते हैं, सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोडोमेन. क्या होते हैं? कोडोमेन. तो आप समझे कि रिलेशन में पहला एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, ये दैट इज द डोमेन. सेकंड एलिमेंट दैट इज द रेंज. और द होल सेट बी इज कॉल्ड ए कोडोमेन. क्लियर? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है. द रिलेशंस क्या है? रिलेशन के बारे में बताए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताए. आगे इस रिलेशन के टाइप्स हैं. ठीक है, कितने टाइप्स के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं. फंक्शन के बारे में है. तो मेनली तो आपको रिलेशन के टाइप्स पढ़ना है. वैसे तो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है. ठीक है, तो एवरी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. अभी हम रिलेशन के बारे में समझें. ठीक है, रिलेशन के एग्जांपल को समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझे. अब रिलेशन के जो आर्डर पेयर बनता है उसमें पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करता है. ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में समझे, सॉरी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में समझेंगे. ओके, बाय, टेक केयर.